इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल। So let us see first of all what is the meaning of operating cycle. So we know that working capital is equal to current assets minus current liabilities. And what is our operating cycle? Operating cycle means how much time is required. Operating cycle means how much time is required for working capital to be invested in firm. So since working capital also means money invested in current assets over current liabilities, but we also know that current assets are converted into cash within short period. So working capital means for how much time so this money remains invested in working capital. So we can also say that operating cycle so measures so time period so for which money remains invested in working capital, or we can also say in how much time period working capital is converted into cash, or we can say in how much time working capital is converted into cash. So for this purpose let us say what is the cycle of this working capital. So working capital is cycle. So cycle means how working capital arises and how it is converted into cash. So first of all we purchase raw material. So first step is raw material is purchased. So then we know that after some time it will be converted into WIP. So it means this raw material is converted into WIP. So we can say that the second step is WIP is produced. Work in progress produced. So it means in how much time material is converted into WIP. So this is called raw material period. Then WIP is converted into finished goods. So this WIP produced, it is converted into finished goods. We can say that finished goods are produced. It means here we see in how much time WIP is converted into finished goods. This is called WIP holding period. Finally, finished goods are converted into sale. It means finished goods produced, so they are finished goods are converted into sales. It means sales are made. Normally sales are made on credit basis. It means it indicates how much time finished goods will take to be sold in the open market. So from credit sale debtors will rise. It means then we collect money from debtors. Finally we have collection from debtors. So here also we have to see how much time it will take to collect money from debtors, which is called the debtors collection period. And once we collect our money, we purchase new material. So it means this process will continue. And how much time this process will take, that is called operating cycle. And in between this, when we purchase raw material on credit, we have to make a payment to creditors. It means we also have to make payment to creditors. So how much time we require to make a payment? So this is facility availed from creditors. So there are two concepts of operating cycle. One is called gross operating cycle. So it means total time required for a raw material. So this is denoted by raw material holding period plus WIP period, then finished goods period plus debtors collection period. इट मीन्स इसमें जितना टाइम आपको लग रहा है रॉ मटेरियल की परचेज से लेके टिल मनी टू कलेक्टिव फ्रॉम डेटर, जिसे कॉल्ड अवर ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल। मीन्स कितना टोटल टाइम आपको लगेगा अपनी मनी को रिसीव करने में फ्रॉम करंट एसेट्स। बट वी आल्सो विल फैसिलिटी फ्रॉम क्रेडिटर, उसका पीरियड एरिया माइनस कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड नेट ऑपरेटिंग साइकिल। इट मीन्स नेट ऑपरेटिंग साइकिल इज ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल विच इज total period of raw material, WIP, finished goods प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। तो जितना टाइम आप डिले करेंगे क्रेडिटर्स को उतना आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो उतना पीरियड आपको माइनस कर लीजिए।
So it also means net working cycle means तो दिस इज अवर टाइम पीरियड, तो इतने टाइम के लिए आपकी फॉर विच तो मनी रिमेन्स इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल। तो अब देखते हैं ये जो ऑपरेटिंग साइकिल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट ऑपरेटिंग साइकिल और ग्रोथ ऑपरेटिंग, इनका बेनिफिट क्या है। तो लेट अस सी व्हाट इज बेनिफिट ऑफ कैलकुलेटिंग दिस ऑपरेटिंग साइकिल। तो जैसे आप देखते हैं हम रेशियो एनालिसिस में कुछ रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट रेशियो है आपकी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये शो करती है सेल्स और समटाइम्स वी टेल टू कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो इट मीन्स जो आपने मनी इन्वेस्ट किया वर्किंग कैपिटल में, उसके अगेंस्ट आपको कितने टाइम्स सेल्स अचीव हो रही हैं। तो दिस रेशियो इंडिकेट्स so how many times sales are achieved for every rupee. Every rupee means 1 rupee invested in working capital. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपको मेंशन की हैं सेल्स हैं आपकी रुपीज 10 लैक्स, वर्किंग कैपिटल इज 2,50,000। सो इट मीन्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स। फिर आपको कैलकुलेट करना है, सपोज अब जो वर्किंग कैपिटल में आपकी मनी इन्वेस्ट हो रही है वो कितने टाइम तक इन्वेस्ट हो रही है, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल होल्डिंग पीरियड। सो विच मीन्स टाइम पीरियड फॉर विच मनी रिमेन्स इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल। तो जिसे कहा वर्किंग कैपिटल होल्डिंग पीरियड, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पूरे साल में आपके गेज हैं, तो नॉर्मल वी टेक गेज पर एनम और उसको आप डिवाइड कर लीजिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। रेशो मीन्स 4 टाइम्स आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो सर्कुलेट हो रहा है ड्यूरिंग 1 ईयर। लेकिन आप गेज लेते हैं राउंडेड फिगर में 360 गेज एंड डिवाइड बाय 4, सो दिस इज कमिंग टू 90 गेज। तो इट मीन्स जो आपने मनी इन्वेस्ट किया वर्किंग कैपिटल में अप्रोक्सीमेटली ये 90 गेज तक इन्वेस्ट रखी है। उसके बाद ये वर्किंग कैपिटल कन्वर्ट हो जाएगा कैश में एंड अगेन भी परचेज न्यू वर्किंग कैपिटल। तो ये जो प्रोसेस है आपका दिस कंटिन्यू होगी। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया है वर्किंग कैपिटल होल्डिंग पीरियड को कहते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो कितने टाइम तक मनी इन्वेस्ट रहती है, तो इसका नाम रखा है हमने नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो इट मीन्स वर्किंग कैपिटल का होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करने के लिए एक तो मेथड ये है हमारा कि फर्स्ट वी कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर और उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर लेते हैं होल्डिंग पीरियड विच इज गेज पर एनम डिवाइडेड बाय टर्नओवर। और या फिर एक ये डायरेक्ट मेथड है कि आप हर आइटम का पीरियड कैलकुलेट कीजिए, रॉ मटीरियल का कितना पीरियड है, WIP, फिनिश गुड्स, जैसे हमने वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में यूज किया था, और उसके थ्रू भी आप इसका साइकिल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब आपके पास साइकिल आ गया है नेट वर्किंग साइकिल, उससे आप वर्किंग कैपिटल की टर्नओवर या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेके से फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। टर्नओवर शो कर रही है कितने टाइम्स आपका वर्किंग कैपिटल सर्कुलेट हो रहा है ड्यूरिंग 1 ईयर। तो उसका फार्मूला बन जाएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, जो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए गेज पर एनम एंड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल होल्डिंग पीरियड जिसका नाम है नेट ऑपरेटिंग साइकिल। इट मीन्स यू कैन डिवाइड बाय नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ये शो कर रहा है कितने टाइम्स आपका वर्किंग कैपिटल जो है सर्कुलेट हो रहा है। तो लाइक इन दिस एग्जांपल आपके गेज हैं 360 और पीरियड है आपका 90 डेज, तो आंसर आ जाएगा सेम 4 टाइम्स। तो उसको कहते हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। तो किसी आंसू कहा जो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स पर एनम, तो एक साल में कितने साइकिल हैं वर्किंग कैपिटल के, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स पर एनम या ऑपरेटिंग पीरियड्स पर एनम, दिस इज कमिंग 4। तो इट मीन्स फार्मूला है गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो अब आप इसके थ्रू ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, मीन्स दिस वर्किंग कैपिटल। लेट अस सी, so with the help of this number of operating cycle we can calculate how much working capital is required। तो अब देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अब देखिए ओरिजिनल फार्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर इज सेल और कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी मनी इन्वेस्ट हो रही है वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड मीन्स फंड्स इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल, विच मीन्स नॉर्मली हम मेजर करते हैं वर्किंग कैपिटल एट कैश कॉस्ट बेसिस। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। तो फार्मूला बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल
and this is on a cash basis which means excluding depreciation. तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो से, so divided by working capital turnover ratio. And what is this working capital turnover ratio? This is number of operating cycle also. So we can say this is also equal to cost of sale, or you can say cash cost of sale, and और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स विच इज पर एनम. तो इतने जो कैश कॉस्ट ऑफ सेल जैसे आपको दी है ₹10 लाख, उसको डिवाइड कर लीजिए 4 से, दैट विल बी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. सेकंड फार्मूला एक और भी बन सकता है डायरेक्ट. तो इफ यू पुट हियर व्हाट इज फार्मूला नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का फार्मूला है गेज अपॉन नेट ऑपरेटिंग साइकिल. तो उसको पुट करते हैं तो फार्मूला आपका बन जाएगा कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स हैं आपके गेज पर एनम divided by net operating cycle. It may, and this will go upside. So direct formula is this one. So cash cost of sales into what is the net operating cycle. इसको आप शो कर सकते हैं NOC and divided by days per annum. तो it means logically unitary method है ये. So this cash to cost sale, this is for a whole year. It means this cost of sale is for 365 days. What will be this cost for net operating cycle? Suppose it is 90 days. So it means this will be our working capital requirement. तो आप कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो बेसिक फार्मूला यही है कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर. टर्नओवर इज आल्सो का नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पर एनम. सो कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल and number of operating cycles are gauged upon net operating cycle and this will go upside. तो अब देखें कि हमारे जो नेट ऑपरेटिंग साइकिल है उसके लिए जो पीरियड्स आपको कैलकुलेट करनी है वो किस तरीके से कैलकुलेट होंगे. तो नेक्स्ट लेके से जो पीरियड्स आपने कैलकुलेट करने हैं डिफरेंट करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटीज के, वो किस तरीके से कैलकुलेट होंगे. देखिए आप एक रेशो हम करते हैं विच इज स्टॉक टर्नओवर रेशो. पहले आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूँ. इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. Average stock means opening plus closing divided by 2 and if there is no opening stock we take closing stock. तो उसके बेस पर फिर हम कैलकुलेट करते हैं मतलब स्टॉक होल्डिंग पीरियड. तो उसका फार्मूला होता है देखिए आप बेस में कैलकुलेट कर रहे हैं बता नंबर ऑफ डेज पर एनम. तो उसको हम डिवाइड कर रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो से लेकर से किसी STR. और देखिए अब इसका फार्मूला यहाँ पुट करते हैं STR का COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. तो देन दिस फार्मूला इज डेज पर एनम divided by cost of goods sold and divided by average stock. तो आपका फार्मूला बनता है जो स्टॉक होल्डिंग पीरियड जिसको स्टॉक का पीरियड भी कहते हैं हम, जिसे आल्सो कहा जो वेलोसिटी पीरियड के डेज पर एनम डिवाइडेड बाय COGS इनटू एवरेज स्टॉक. तो इट मीन्स अब जिस आइटम का आपने पीरियड कैलकुलेट करने हैं अब उस आइटम को लीजिए एवरेज इनको कीजिए डेज पर एनम और उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे स्टॉक के लिए चाहिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स उससे आप डिवाइड कर लीजिए. तो दिस विल बी अवर पीरियड. तो अब देखते हैं डिफरेंट पीरियड्स आपके कैसे कैलकुलेट होंगे. सो वी हैव सीन दैट नेट ऑपरेटिंग साइकिल विच इज कॉल्ड NOC जिसे इक्वल टू रॉ मटेरियल पीरियड प्लस WIP पीरियड प्लस फिनिश गुड्स पीरियड प्लस डेटर्स पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पीरियड. तो आपने देखा नेट ऑपरेटिंग साइकिल शो कर रहे हैं कितने टाइम में आपकी जो मनी इन्वेस्ट हुई है वर्किंग कैपिटल में वो कैश में कन्वर्ट हो रही है. तो उसका दूसरा नाम भी है इट इज आल्सो कॉल्ड कैश कन्वर्जन साइकिल. तो अब देखते हैं वन बाय वन कि पहले जैसे रॉ मटेरियल का पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम. अब हम पहले कैलकुलेट करते हैं रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड विच इज कॉल्ड रॉ मटेरियल पीरियड. इसका जो फार्मूला है इस बेस पर हम डिराइव करेंगे. तो सबसे पहले आप लीजिए एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. सो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. अब देखो रॉ मटेरियल का स्टॉक हम कैलकुलेट करते हैं रॉ मटेरियल की कंजम्पशन से. तो इतनी फार्मूला बन जाएगा इनटू डेज डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन. तो इनटू डेज पर एनम डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिस इज आल्सो पर एनम. तो एक और फार्मूला बन सकते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन को जब हम गेज से डिवाइड कर रहे हैं ये बन रही है कंजम्पशन पर डे. तो इतनी स्टॉक को डिवाइड कर लीजिए कंजम्पशन पर डे से. अगर ये बेसिक फार्मूला आपका यही है. सेकंड कैलकुलेट करते हैं WIP होल्डिंग पीरियड.
WIP के लिए हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। WIP को हम मेजर करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पर। तो ये टेक गेज पर एनम इंटू गेज पर एनम डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट per annum. Then we have a period for finished goods. This is your finished goods period. Finished goods का फार्मूला which is this one, stock means finished goods. तो ये हम लेंगे एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इनको कीजिए गेज पर एनम एंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. Then we have a डेटर्स कलेक्शन पीरियड. डेटर्स हम मोस्टली मेजर करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल में कैश बेसिस पर. It means what is the debtors period, which is also called debtors collection period. So formula is what is the average debtors into days per annum. अब डेटर्स को हम वैल्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ सेल. सो यू डिवाइड बाय कैश कॉस्ट ऑफ सेल. देखो रॉ मटेरियल कंजम्पशन होती है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. फिर जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है उसमें हम ऐड करते हैं वेजेज प्लस फैक्ट्री ओवरहेड. इट बिकम्स फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट में फिर हम प्लस माइनस करके हैं जो स्टॉक है आपका फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग. दिस बिकम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस यानी कि बिकम्स कैश कॉस्ट ऑफ सेल. देन फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट क्रेडिटर्स पीरियड. दिस इज आल्सो कॉल्ड क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड. सो फार्मूला बन जाएगा बता रहा एवरेज क्रेडिटर्स इनटू डेज पर एनम. और क्रेडिटर्स कैलकुलेट होते हैं ऑन बेसिस ऑफ क्रेडिट परचेज. सो डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेज पर एनम. तो ये सभी के पीरियड कैलकुलेट हो जाएंगे. पुट दिस वैल्यू हेयर सो यू विल गेट टू नेट ऑपरेटिंग साइकिल. और उसके बेस पर फिर आप अपने वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन भी कर सकते हैं. तो उसका फार्मूला हमने देखा ही है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. So we have seen this formula. Working capital requirement is equal to what is the cash cost of sale. अब ये पूरे साल की है कैश कॉस्ट ऑफ सेल. हमें चाहिए जितना टाइम पीरियड आपका इन्वॉल्व हो रहा है ऑपरेटिंग साइकिल में. तो यू टेक इनटू नेट ऑपरेटिंग साइकिल डिवाइडेड बाय डेज पर एनम. So this will be working capital requirement. तो लेट अस सी वन एग्जांपल. उसके बेस पर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. Let us say example on basis of operating cycle. इस एग्जाम्पल में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है. फ्रॉम द फॉलोइंग डेट ऑफ एक्सपायरी लिमिटेड कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. तो आपको रॉ मटेरियल से कंजम्पशन दी है पर एनम. एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन, एवरेज वर्किंग प्रोग्रेस हेल्ड इज गिवन, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज गिवन, average collection period for debtors and average credit period obtained from creditor is given. Number of days worked per annum is given 365. तो सिंपल है. को पहले कैलकुलेट करके हैं पीरियड्स फॉर ईच आइटम ऑफ करंट. कैसे कहेंगे करंट लायबिलिटी. तो सबसे पहले देखिए आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल पीरियड. तो फार्मूला है आपका एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सो इनटू डेज पर एनम and divided by raw material consumption. Let us see what is the average stock of raw material. This is given 60,000. So days per annum आपको मेंशन किए हैं 365 and consumption is given 6 lakh rupees. So what is the raw material period? This is coming 36.5 days. ये आपका डेज में आ जाएगा पीरियड. Then we have WIP period. Working in progress period. So this will be average stock of WIP into days per annum. देखिए आपका जैसे ओपनिंग WIP भी है क्लोजिंग WIP भी है. तो उस केस में फिर हम कैलकुलेट करते हैं WIP ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर एनम.
कॉस्ट के प्रोजेक्शन का देखो फार्मूला होता है हमारा, तो नॉर्मली यदि ओपनिंग और क्लोजिंग WIP आपका सेम है, फिर तो आपका जो कॉस्ट का प्रोजेक्शन है दैट विल बी सेम इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट अभी हमने देखा, इसमें हम लिखे हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस वेजेज प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। पर अब देखिए आपका ओपनिंग और क्लोजिंग WIP डिफरेंट आ रहा है, तो आप इसमें फैक्ट्री कॉस्ट में प्लस कीजिए ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP, तो जिससे बिकम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इट मीन्स यदि ये डिफरेंट है तो इससे एवरेज भी चेंज हो जाएगी आपकी, एवरेज टोटल WIP वी कैलकुलेट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, और फिर आप कैलकुलेट कीजिए कॉस्ट का प्रोडक्शन और उसके बेस पर हम WIP कैलकुलेट करेंगे। बट इफ बोथ आर सेम देन फैक्ट्री कॉस्ट एंड कॉस्ट का प्रोडक्शन विल बी सेम। तो इन दिस एग्जांपल लेट अस सी, नाउ वी आर गिवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दी है, सो व्हाट विल बी आवर WIP पीरियड। तो किसी एवरेज स्टॉक ऑफ WIP जो आपको मेंशन किया है जिसे 50,000, नंबर ऑफ डेज है आपके 365 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन ₹10 lakhs, so this will be our 50,000 into 365 divided by 10 lakhs, so this is coming 18.25 days. This is our WIP period. Then you can calculate रॉ मटेरियल पीरियड, ये हम डिनोट कर रहे हैं R से, जिसे कि W। then we have फिनिश गुड्स पीरियड, FAU फिनिश्ड गुड्स पीरियड। उसका फार्मूला है बल्कि एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इनटू डेज पर एनम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और जैसे ऑलरेडी गिवन टू अस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कीजिए 12 लाख रुपीज, तो उसमें पुट कर रहे हैं एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज गिवन 60,000 इंटू 365 डेज अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कीजिए 12 लाख, तो दिस इज 365 इंटू 60,000 divided by 12 lakhs, so this is also coming 18.25 days। फिर आपको डेटर्स का पीरियड ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 30 डेज, क्रेडिटर्स का पीरियड भी आपको दिया है 45 डेज एंड नंबर ऑफ डेज आपको मेंशन किए गए। नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज योर नेट ऑपरेटिंग साइकिल, जिसे कि रॉ मटेरियल पीरियड प्लस WIP पीरियड प्लस फिनिश गुड्स पीरियड प्लस डेटर्स पीरियड माइनस क्रेडिटर्स। तो अब देखिए रॉ मटेरियल का पीरियड है 36.5 डेज, WIP इज 18.25, फिनिश गुड्स इज आल्सो 18.25। फिर आपको डेटर्स का पीरियड हमें ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में जिसे 30 डेज, और क्रेडिटर्स का पीरियड आपने करना है माइनस विच इज 45 डेज। So we are getting net working cycle is 36.5 plus 18.25 plus 18.25 plus 30 days minus 45, तो किसी कमिंग 58 डेज। इट मीन्स आपका जो वर्किंग कैपिटल में फंड्स इन्वेस्ट करेंगे दैट विल बी फॉर 58 डेज। फिर आप इससे ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। इट मीन्स कि जो वर्किंग कैपिटल है वो आपका कितनी बार जो है सर्कुलेट होगा ड्यूरिंग 1 ईयर, किसी आंसू कहा जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसका फार्मूला है, अब आपके पास डेज हैं पर एनम, उसको आप डिवाइड कीजिए नेट ऑपरेटिंग साइकिल से, तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल का जो पीरियड है तो किसी कमिंग 365 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आपके नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स आ जाएंगे 365 डिवाइडेड बाई 58, जिसे 6.293 टाइम्स। इतने साइकिल्स में इतनी टाइम्स आपका वर्किंग कैपिटल रोटेट होगा ड्यूरिंग 1 ईयर, सर्कुलेट होगा। अब आपको कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसका फार्मूला है वर्किंग कैश कॉस्ट ऑफ सेल इनटू नेट ऑपरेटिंग साइकिल डिवाइडेड बाई डेज पर एनम। अब इस क्वेश्चन में कैश कॉस्ट ऑफ सेल को मेंशन नहीं की, बस सिर्फ आपको ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यही कैश कॉस्ट ऑफ सेल मानी जाएगी, जिसे गिवन 12 लाख, तो 12 लाख की हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है। ये है पूरे 365 डेज की, और हमें चाहिए 58 डेज। आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 58 डेज। इट मीन्स कि 58 डेज में कितने फंड्स आपके इन्वेस्ट होंगे, तो जस्ट यू कैन कैलकुलेट 12 लाख इंटू 58 डिवाइडेड बाई 365,
This is coming rupees, this is 190,685 around it. This will be on an average basis our requirement of working capital. इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटिंग साइकिल हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो फर्दर एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।